Whenever we prepare for any competitive examination, be it regulatory bodies exam, be it civil services, banking exam, etc., the most important factor that we take into account is salary kitni milegi. And same is the case with NABARD grade A exam as well. So if you are someone who is preparing for NABARD grade A examination, or if you are aspiring to become NABARD grade A officer, so it is very very important for you to know कि salary कितनी मिलेगी, what would be the in hand salary that you would get after becoming NABARD grade A officer, what are the allowances that you would get after becoming NABARD grade A officer. So each and every aspect we are going to discuss in this video. And if you might have seen the thumbnail here, so you can see here salary in hand is roughly 20 lakh per annum. So I would tell you the breakup of this 20 lakh per annum also in this video. So hello friends, welcome to Super Coaching Regulatory Bodies by Textbook. My name is Prakash, and let's start the discussion of salary of NABARD grade A officer, and that too in hand salary. And at the end I would be telling you what is the gross CTC that you would get if you become NABARD grade A officer. So starting with the basic salary here, so you can see here, if I tell you about the basic pay, grade allowance, dearness allowance, HRA, family allowance, and also after taking into consideration the deduction part, you would be getting 89,000 roughly, or I can say 90,000 roughly, right? तो यहाँ पर basically deduction is also taken into account. तो यहाँ पे further अब इसमें से कुछ deduct नहीं हो रहा है, deduction already यहाँ पे involve कर ली गई है, deduction को already consider कर लिया गया है. So if I conclude all this basically, so you would get 89,000 per month roughly, and जिसको हम बोल सकते हैं that is roughly 90,000. HRA is subject to basically deduction here separately. कैसे, आई विल टेल यू हियर. ठीक है, तो एचआरए यहाँ पे आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, आई विल टेल यू लिटिल लेटर. बट यहाँ पे यू कैन सी दिस फिगर इज रफली 90,000. यहाँ पे बात करें सर अलाउंसेस कौन से मिलते हैं, तो बहुत सारे डिफरेंट अलाउंसेस आर देयर. फॉर एग्जांपल पेट्रोल अलाउंस, मेंटेनेंस, then newspaper, then you would get mobile allowance, then internet would be there, house help is there, etc. और भी बहुत सारे allowances हैं that you would get यहाँ पे monthly basis पर भी, और यहाँ पे yearly basis पर भी कुछ allowance होते हैं that you would get. So let's discuss first the monthly allowances that you would get after becoming NABARD grade A officer. यहाँ पे guys सबसे पहले you would get petrol allowance of roughly 21,000 per month. 21,000 आपका per month रहेगा, but that is यहाँ पे 150 liters per month के हिसाब से basically यहाँ पर है. इफ यू आर बेसिकली पोस्टेड इन मेट्रोज लाइक दिल्ली, बेंगलोर, तो यहाँ पे आपको 30 लीटर्स एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब 180 हो जाएगा. और अगर यहाँ पे आप मुंबई में पोस्टेड है देन आपको यहाँ पे 50 लीटर्स एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब 200 लीटर्स आपको यहाँ पे इसका जो अलाउंस रहेगा वो आपको मिलेगा. रीजन बीइंग, देखिए आप ज्यादा बड़ी सिटी में रहते हो, वहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा रहता है, ठीक है, और अगर ट्रैफिक में गाड़ी है तो ऑब्वियसली बात है पेट्रोल ज्यादा ही लगेगा. तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हु विल बी टेकिंग केयर ऑफ दिस, NABARD विल बी टेकिंग केयर ऑफ दिस. सो आपको उसमें परेशान नहीं होना है. सो NABARD विल pay you the allowance with respect to the petrol. Then you would have a household allowance, 5,000 per month will be given. household allowance आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा. इंटरनेट के लिए गाइस यू वुड बी गिवन 2,000 पर मंथ, ठीक है. अब आप उसमें से 500 वाला इंटरनेट भी यूज कर सकते हैं, 1,000 भी, 1,500 भी, जो आपकी मर्जी है. बट यहाँ पे दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू फॉर द बिल्स हियर, राइट. यहाँ पे कोई बिल्स आपसे नहीं लिए जाएंगे, रादर आपको यहाँ पे फ्लैट 2,000 रुपीज वुड बी प्रोवाइडेड फॉर इंटरनेट as an internet allowance. Mobile allowance would be given 1,100 per month here. Then newspaper guys, जो प्रिपरेशन आपने NABARD में जाने के लिए की थी, न्यूज़पेपर पढ़ के, करंट अफेयर्स पढ़ के, राइट, सेम प्रिपरेशन आपको यहाँ पे आरबीआई चाहता है कि उसी तरीके से आप अपने आप को अपडेटेड रखें. NABARD चाहता है बेसिकली, नॉट आरबीआई. तो NABARD यहाँ पे चाहता है कि आप उसको अपडेटेड रखें अपने आप को, न्यूज़पेपर आप लगातार पढ़ते रहे. तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको इस न्यूज़पेपर के लिए भी अलाउंस वुड बी गिवन हियर. देन यहाँ पे एचआरए है, दैट इज 25,000. आई टोल्ड यू बेसिकली कि दिस कैन बी गिवन ऑल्सो एंड दिस कैन नॉट बी. रीजन बीइंग, इफ यू आर अवेलिंग द अकोमोडेशन गिवन बाय NABARD, अगर यहाँ पे आप NABARD के द्वारा दिया हुआ अकोमोडेशन आप यहाँ पे अवेल कर रहे हैं, then in that case this amount would not be given. If you are not availing the accommodation given by NABARD, then in that case 25,000 would be given to you, right? And that is why I told you कि this can be given and this cannot be given also. देन फर्दर चिल्ड्रन एजुकेशन वुड बी देयर. तो अगर आपके चिल्ड्रन हैं देन ओनली यू वुड बी अवेलिंग दिस अलाउंस. तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपको मिलता है यहाँ पे 7,000 का, 7,000 पर मंथ फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, ठीक है. तो मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस के लिए होता है यहाँ पे, उससे ज्यादा अगर चिल्ड्रन है तो उनके लिए यहाँ पे अलाउंस नहीं प्रोवाइड किया जाएगा. देन फर्दर सोडेक्सो इज प्रोवाइडेड, दिस इज सोडेक्सो कूपन विच इज प्रोवाइडेड 3,600 यहाँ पे किया जाता है, ठीक है. तो यहाँ पे 3,600 पर मंथ आपको सोडेक्सो कूपन के फॉर्म में यहाँ पे अलाउंस प्रोवाइड किया जाएगा. देन फर्दर मेंटेनेंस वुड बी प्रोवाइडेड 500 पर मंथ, ठीक है. तो 500 पर मंथ का आपको यहाँ पे मेंटेनेंस प्रोवाइड किया जाएगा. सो ऑल दीज इनको आप क्लब करते हैं, सो यू वुड गेट 66,000 एडिशनल
फ्रॉम द अलाउंस इटसेल्फ। तो 66,000 90,000 लगभग हमने देखा था वहां पे। अलाउंस की बात करें तो मंथली बेसिस पर जो अलाउंस मिलेंगे उसकी जो वैल्यू है दैट वुड बी रफली 66,000। ठीक है, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, बट अगर हम बात करें एक बड़े फिगर की, सो दैट इज रफली 66,000 ईयर। बात करें मूविंग ऑन टू, कुछ ईयरली अलाउंसेस भी होते हैं जो आपको मिलते हैं, कुछ ऐसे अलाउंसेस जो आपको 5 ईयर्स में एक बार मिलते हैं। ठीक है, बट उनकी यहाँ पे ईयरली वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। सो व्हाट इज द ईयरली वैल्यू ऑफ द अलाउंसेस दैट यू वुड गेट? तो यहाँ पे बुक ग्रांट इज प्रोवाइडेड ऑन ईयरली बेसिस 7,000, क्योंकि यहाँ पे नबार्ड अगेन चाहता है कि आप अपडेटेड रहें, नई नई बुक्स पढ़ते रहें, नॉलेज गेन करते रहें। देखिए यहाँ पे ये पर्सनल जो ग्रोथ वाला पार्ट है, बेसिकली नबार्ड इसका भी यहाँ पे ध्यान रख रहा है। सो नबार्ड इज टेकिंग केयर ऑफ दिस ऑल्सो, कि आपकी जो पर्सनल ग्रोथ है वो रुकनी नहीं चाहिए, आपका जो नॉलेज पार्ट है वो लगातार बढ़ते रहना चाहिए। एंड दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर बुक ग्रांट इज प्रोवाइडेड ऑन अ ईयरली बेसिस एट रुपीज द 7,000। मेडिकल ऑन डिक्लेरेशन यहाँ पे 13,000 का विल बी प्रोवाइडेड। ब्रीफ केस के लिए यहाँ पे आपको अलाउंस मिलेगा, दैट इज 4,000, जो कि जनरली ब्रीफ केस हम यूज नहीं करते हैं, बट या वी यूज लैपटॉप बैग्स। ठीक है, तो आप उसको उस तरीके से मान सकते हैं, बट दैट अमाउंट इज 4,000। फर्नीचर के लिए ईयरली बेसिस पे यू वुड गेट 55,000। तो यहाँ पे ये बेसिकली 2.7 लाख जो है ये दिया जाता है वंस इन एवरी 5 ईयर्स, ताकि जो फर्नीचर आप अपने यहाँ पे उसको फर्दर नए फर्नीचर बाय करना चाहें तो आप उसको कर सकते हैं। सो दिस अमाउंट इज पेड बेसिकली वंस इन एवरी 5 ईयर्स। अगर उसकी हम ईयरली वैल्यू की बात करें, सो दैट इज 55,000 है। स्पेक्टिकल अलाउंस इज देयर, दैट इज 13,000 स्पेक्टिकल अलाउंस है, गिवन एज 13,000 वंस इन 2 ईयर्स। ठीक है, वंस इन 2 ईयर्स में प्रोवाइड किया जाता है, बट यहाँ पे स्पाउस को भी सेपरेटली बेसिकली यहाँ पे स्पेक्टिकल अलाउंस पे किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर आपका ध्यान रखा जा रहा है, आपके साथ जो लोग हैं, आप पर जो डिपेंडेंट्स हैं, उनका भी पूरी तरीके से नबार्ड द्वारा ध्यान यहाँ पे रखा जा रहा है। देन यू वुड बी हैविंग द लीव फेयर कंसेशन ऑफ 30,000। यहाँ पे देख सकते हैं 15,000 पर पर्सन होता है वंस इन 2 ईयर्स। ठीक है, तो वंस इन 2 ईयर्स 15,000 पर पर्सन होता है, मतलब यहाँ पे अगर हम एक साल की बात करें तो पर पर्सन 7,500, राइट। तो यहाँ पे 7,000 पर पर्सन जो है बेसिकली यहाँ पर ईयरली बेसिस पर मिलता है फॉर मैक्सिमम ऑफ 4 डिपेंडेंट पीपल। तो यहाँ पे 4 डिपेंडेंट पीपल होंगे, जिसकी वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी कितना, 30,000 हो जाएगी पर ईयर के हिसाब से। एंड द टोटल ऑफ दिस वुड बी रफली 1,22,000। तो ये ईयरली बेसिस पर 1,22,000 आपका ये ईयरली अलाउंस हो गए हैं। ठीक है, इनमें से कुछ अलाउंस आपको 5 ईयर्स में एक बार मिलते हैं, कुछ ईयरली बेसिस पर भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पे गाइज इफ आई टेल यू अबाउट द टोटल सीटीसी यहाँ पे कितना रहने वाला है। सो टोटल सीटीसी यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेसिक पे वाला हमने क्राइटेरिया देखा था, दैट इज रफली 90,000। मंथली अलाउंसेस इफ आई टेक इनटू अकाउंट दैट इज 66,000। ईयरली अलाउंस को अगर हम ले तो दैट इज 1,22,000। तो यहाँ पे अगर हम इसको क्लब करें, सो यहाँ पे मंथली अलाउंसेस प्लस जो आपका बेसिक वाला जो अमाउंट है उसको क्लब करके यू वुड गेट 1,55,000। ठीक है, एनुअल अलाउंस को भी ऐड करेंगे, सो दैट इज 1,22,000 एंड दैट मेक्स द टोटल ऑफ 19,82,000 लाख पर एनम, विच मीन्स कि यहाँ पे आपका लगभग 20 लाख पर एनम आ चुका है। एंड दैट इज आफ्टर डिडक्शन। डिडक्शन के बाद की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक, डिडक्शन के पहले की नहीं। डिडक्शन वी हैव ऑलरेडी टेकन इनटू अकाउंट, डिडक्शन वाला पार्ट हमने ऑलरेडी कंसीडर कर लिया है, विच मीन्स आफ्टर डिडक्शन यू वुड बी गेटिंग रफली 20 लाख पर एनम। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ग्रॉस सीटीसी की, तो ग्रॉस सीटीसी वुड बी समवेयर बिटवीन 25 टू 26 लाख पर एनम ग्रॉस सीटीसी होगी। ठीक है, ग्रॉस सीटीसी मतलब यहाँ पे बेसिकली डिडक्शन वाला पार्ट इंक्लूड करके, जो डिडक्शन होना है वो अमाउंट इंक्लूड करके, दिस अमाउंट इज रफली 25-26 लाख पर एनम। बट आफ्टर डिडक्शन वॉट एवर यू गेट दैट इज 19,82,000, या अगर हम कहें इसको राउंड ऑफ फिगर में, दैट इज 20 लाख पर एनम यू वुड बी गेटिंग। सो इफ यू आर अ फ्रेशर गाइज एंड इवन इफ यू आर एक्सपीरियंस, सो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आप किसी भी अपने जब अपने करियर की आप शुरुआत करते हैं वहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, एंड आफ्टर हैविंग 5-6 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस शायद आप इस फिगर तक पहुँच सकते हैं। अगर आप फ्रेशर है फिर तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, बट नबार्ड इज प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी जिसके थ्रू आप यहाँ पर डायरेक्टली इस फिगर तक पहुँच सकते हैं आफ्टर गिविंग दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। ठीक है, so this is all with respect to the discussion of the salary in hand and the perks and allowances given to a NABARD grade A officer by the NABARD. And guys, if you are someone who is preparing for RBI grade B examination, and if you are looking for the mentorship program guys, so we have started Laksh 2.0, which is a foundation and comprehensive course for the this particular RBI grade B examination. अब यहाँ पे this is one of the best platform guys that we are providing here. Why I'm saying so? Here we are providing multiple things. For example, live classes we are providing here, mock test, mentorship program is there, descriptive answer writing, interview guidance program, each and everything is there. बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे आपको provide कर रहे हैं. Guys, why I'm saying that this is one of the best platform, reason being the extensive and a comprehensive live classes that we are providing. So यहाँ पे हम our focus is not to just complete the syllabus, rather we are focusing on
conceptual, developing the conceptual understanding, foundation building, knowledge enrichment, ये सारे एरियाज पर हम फोकस कर रहे हैं क्योंकि यू माइट बी समवन हु इज नॉट फ्रॉम द फाइनेंस बैकग्राउंड, हु इज नॉट फ्रॉम द इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड, हु इज नॉट फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपको कोई प्रायर नॉलेज की जरूरत है। इफ यू आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स गाइज, देन प्रायर नॉलेज इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल एंड यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम स्क्रैच, फोकसिंग ऑन द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज एनरिचमेंट, ठीक है, उन सारी चीजों पर फोकस करके। सो क्लासेस विल बी फ्रॉम वेरी स्क्रैच, जहां पे हम चीजें बहुत ही स्क्रैच से कवर करेंगे और एकदम आगे तक ले जाएंगे रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड वेरी, आई कैन से दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर यू इफ यू आर समवन हु इज स्टार्टिंग द प्रिपरेशन फ्रॉम वेरी स्क्रैच। आपने कभी इन सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ा है, बहुत ज्यादा हेल्प आपको मिलने वाली है। 1-to-1 मेंटोरशिप इज देयर, जब भी आपको कोई डाउट है यू कैन जस्ट गेट योर कॉल कनेक्टेड विथ एनी मेंटोर whom you want to connect, उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से जब भी आपको कन्वीनियंट लगे, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग गाइस, वी आर नॉट ओनली टेलिंग यू कि क्या क्या डायमेंशंस होते हैं, बट अलॉन्ग विद दैट वी वुड बी प्रोवाइडिंग यू डिटेल्ड इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, ठीक है। आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के हिसाब से वी वुड बी प्रोवाइडिंग द इवैल्यूएशन। हम आपको बताएंगे व्हाट इज द स्ट्रेंथ एरिया जो आपको कंटिन्यू रखनी है, व्हाट आर द वीक एरियाज उसको आपको ऊपर लेकर आना, कैसे लेकर आना, वो मेथड भी आपको बताया जाएगा यहाँ पर। देन फर्दर यहाँ पे गाइस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम वुड बी देयर। तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में मल्टीपल मॉक इंटरव्यूज तो रहेंगे ही, ठीक है। उसके साथ साथ बेसिकली यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल, बेस्ड ऑन योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, बेस्ड ऑन योर वर्किंग एक्सपीरियंस, हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन द एक्चुअल इंटरव्यू। तो ये सारी की सारी चीजें आपको वहां पर बहुत अच्छे तरीके से गाइड की जाएंगी। टॉप क्वालिटी ऑफ नोट्स वुड बी देयर गाइड। तो यहाँ पे द थिंग इज कि यहाँ पे जो चीजें हैं वो ये है यहाँ पर कि चीजें बहुत ही स्क्रैच से हम स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, ठीक है। एंड दिस इज अ फाउंडेशन कोर्स गाइस। यहाँ पे इफ यू आर अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स देन यू आर नॉट सपोज टू हैव एनीथिंग एडिशनल, ठीक है। सो एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ फ्रॉम फेज 1 टिल योर सिलेक्शन। सारे रिक्वायरमेंट्स को आपको यहाँ पे मीट किया जाएगा और बहुत ही आराम से स्लोली स्लोली हम चीजों को कवर करते हुए चलेंगे ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। और अभी जो सिचुएशन है बेसिकली वहां पे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना बहुत जरूरी है। क्रैमिंग आपको बहुत ज्यादा दिन तक हेल्प कर नहीं पाएगी, ठीक है। क्रैमिंग से आपको बार बार चीजें याद रखनी पड़ेंगी और वो चीजें आप बहुत दिन तक याद नहीं कर पाएंगे। और इफ यू हैव सीन दिस ईयर ऑफ आरबीआई ग्रेड बी फेज 2 एग्जामिनेशन, वहां पे अगर आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपकी डेवलप अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड है, देन इन दैट केस वो आपके लिए काफी फ्रूटफुल होने वाला है, राइट। सो गाइज यहाँ पे द लिंक ऑफ द कोर्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। जाइए आराम से चेक करिए सारे डिलीवरेबल, सारे ऑफरिंग्स दैट वी आर प्रोवाइडिंग यू, वो सारी की सारी आपको चेक करनी है आराम से। एंड उसके बाद गाइज अगर इफ यू आर कन्विंस्ड, if you are feeling that yeah this program is basically fulfilling my requirements, then in that case be a part of this program guys। link यहाँ पे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में and you can use the coupon code for having further discount। तो जो प्राइसेस आपको शो हो रहे हैं वो डिस्काउंट्स के साथ होंगे, बट इफ यू वांट फर्दर डिस्काउंट यू अप्लाई द कूपन कोड प्रकाश, दिस इज माय नेम। इसको आप अप्लाई करिए और इसके बाद यू विल हैव द फर्दर डिस्काउंट ओवर द फाइनल प्राइजेस। तो वहां पे आपको फर्दर डिस्काउंट मिलेगा जिसके चलते आपके लिए कोर्स और भी अफोर्डेबल हो जाएगा। सो वी आर ट्राइंग एवरी पॉसिबल वे टू मेक द कोर्स मोर अफोर्डेबल फॉर यू एंड दिस इज वन सच मैकेनिज्म थ्रू विच यू कैन हैव अ अफोर्डेबल कोर्स। एंड दिस इज माय टेलीग्राम ग्रुप गाइस, इसको जरूर ज्वाइन करिए। आफ्टर ज्वाइनिंग दिस यू वुड बी हैविंग रेगुलर अपडेट्स रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंट सेशंस as well as the examination updates। So thank you very much for watching this and thank you very much for listening me. I hope this was fruitful for you. So we'll meet in another session guys. Till then, goodbye and happy learning friends.